Hello everyone, in today's videos we are discussing about the bacterial taxonomy. So bacterial taxonomy basically is the science of classification of bacteria that is known as the bacterial taxonomy. Taxonomy basically means the arrangement. ठीक है जी, it is defined as the science of the biological classification and it is basically consist of the three interrelated parts, namely that is a classification, basically the orderly arrangement of organism into the groups based upon the mutual similarity, that is a phenetic, और evolutionary is phylogenetic. क्लासिफिकेशन बेसिकली दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, इट इज़ अ फेनेटिक्स एंड phylogenetic and nomenclature concerned with the assignment of their names to the taxonomy group in arguments with published rule. And third one should be the identification, the practical side of the taxonomy, the process of determining that a particular isolate belong to a recognized taxon. Basically, the taxonomic ranks or level: species, genus, family, order, class, phylum, kingdom. That is always known. For example, Homo sapiens Homo sapien is a species, Homo is a genus, Homonoid is family, primate should be the order, and mammal should be the class, and chordate should be the phylum, and kingdom should be the Animalia. Next one is a bacterial species concept. Basically, bacterial species is a collection of strains which shares many stable properties and different significantly from other strains. Share similar guanine plus cytosine content composition. Basically, strain is a population of individual which is a different from some other population within a species. For example, बैक्टीरियल स्टेन दैट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, ऐसे बैक्टीरिया की स्टेन जो मॉर्फोलॉजी जो तुम्हारी बाहर के देखने से मतलब अलग है तो उनको हम बोलेंगे मॉर्फोवार्ड्स. डिफरेंट बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकली, इनर स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट, इट इज कॉल्ड बायोवार्ड्स. डिफरेंट इन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, उनको हम बोलेंगे सीरोवार्ड. जो जो प्रॉपरली टू इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स, उनको हम बोलेंगे पैथोवार्ड्स. ठीक है जी. मेजर करेक्टरिस्टिक्स जो यूज होते हैं बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में, दैट इज अगर हम क्लासिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दैट इज अ क्लासिकल टेक्सोनमी. ठीक है जी. क्लासिकल टेक्सोनमी हो सकती है, मॉलिक्यूलर करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. अगर हम बात करते हैं क्लासिकल टेक्सोनमी, दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल फीचर, फिजियोलॉजिकल फीचर्स एंड इकोलॉजिकल फीचर. बट इन मॉलिक्यूलर करेक्टरिस्टिक्स देयर इज अ जीनोमिक, डीएनए, guanine, cytosine ratios, genomic hybridization, nucleic acid sequencing, and also the ribotyping is included in the molecular characteristics in the molecular biology. And the third one is classical characteristics. ठीक है. मॉर्फोलॉजी में मैंने बता दिया आपकी, जैसे यूनिसेलुलर है. फॉर एग्जांपल सेल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर हो सकता है. अगर हम बात करते हैं स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ की, तो ग्राम स्टेनिंग हो सकती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग हो सकती है. ठीक है. फ्लैजिलेशन हो सकता है, मोटिलिटी हो सकती है, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है आपका. ठीक है जी. स्पोर हो सकता है, सेल इंक्लूजन्स हो सकती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फीचर्स हो सकते हैं. बेसिकली द मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, दैट इज they are easily studied and analyzed, especially in eukaryotic microorganisms and comparability complex prokaryotes. Basically, morphological similarity among microorganisms often is a good indication of the phylogenetically relatedness. फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज न्यूट्रिशनल टाइप, कैसा उनका न्यूट्रिशन है. आइदर दे आर फोटोलिथोट्रॉप्स, आइदर दे आर कीमोलिथोट्रॉप्स, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स. कार्बन सोर्स वो कौन सा यूज़ करें, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करें कि शुगर एसिड का यूज़ करें, शुगर अल्कोहल का यूज़ करें कि पॉलीसेकेराइड का यूज़ करें कि ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं. नाइट्रोजन सोर्स पे हो सकता है, ऑक्सीजन उनका रिलेशनशिप कैसा है. ठीक है. टेम्परेचर रिलेशनशिप हो सकता है कि वो कौन से हैं, मीजोफिलिक हैं, मीजोफिलिक हैं, ऑब्लिगेटरी थर्मोफिलिक हैं, हाइपर थर्मोफाइल या हेलोफाइल, समथिंग कुछ भी हो सकता है. ठीक है जी. अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू द माइक्रोबियल टेक्सोनमी. मेन फीचर इज लाइफ साइकिल पैटर्न, नेचर ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, पैथोजेनिक नेचर कैसा है उनका, उनकी जो रिक्वायरमेंट है पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन में वो कैसी उनकी वेरिएशंस आती हैं, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन कैसा है उनका. अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर करेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज अ जीनोमिक, डीएनए, ग्वानिन साइटोसिन रेशियोज इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्वानिन plus cytosine in an organism DNA. Basically, the guanine and the cytosine ratio, the base sequence and varies with the sequence changes as follows. ठीक है. ये बेसिकली यही है. अगर जीनोमिक हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो ये मेजर करता है जो डिग्री होती है ना सिमिलैरिटी बिटवीन दो जीनोम्स और हेल्प करते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोमिक हाइब्रिडेशन.
इन डीएनए हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ यूज टू स्टडी द क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है जी। एंड डीएनए आरएनए मतलब डिफरेंट, जो तुम्हारे कंपेयरिंग डिस्टिंक्टली रिलेटेड बैक्टीरिया जो बहुत मतलब डिफरेंट होंगे। अगर हम न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो रीडिंग ऑफ द जेनेटिक्स को डायरेक्टली कंपेयर द जेनोमिक स्ट्रक्चर्स एंड राइबोटाइपिंग मेजर द यूनिक पैटर्न generated from DNA from any bacterial species in ribotyping. And also as a molecular fingerprinting because a unique series of bands appear for virtually any bacterium. ठीक है जी। इसमें तो यही था, हाँ यही था इस वीडियो में।